پاکستان ٹیم کے بیٹنگ کوچ محمد یوسف نے نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ون ڈے میں پاکستان کی شکست کا ذمہ دار بولرز کو قرار دے دیا۔ صحافی کے سوال پر سلمان آغا اور عرفان نیازی کا نام لیے بغیر کہا دونوں بولرز مہنگے ثابت ہوئے، بولرز کو اتنے رنز نہیں دینا چاہیے تھے، دیکھنا ہوگا دوسرے ون ڈے سے قبل پانچویں بولر کی ضرورت ہے یا نہیں، آل راؤنڈر کو کھلانا ہے یا ایک مکمل بولر کو پلئنگ 11 میں رکھنا ہے۔ ٹیم کی سلیکشن سے متعلق سوال بھی ٹال گئے، بولے اس وقت ٹیم سلیکشن سے متعلق بات کرنا مناسب نہیں، بولرز کے اضافی 43 رنز پر بھی شکست کا باعث بنے، ہدف 240 یا 260 تک ہوتا تو اچھا رہتا۔ محمد یوسف نے پریس کانفرنس میں کہا کہ سلمان آغا اور بابر اعظم کی بیٹنگ سے پاکستان اچھی پوزیشن میں آ گیا تھا، لیکن ایک ہی اوور میں 2 وکٹیں گری، سلمان آغا کے ساتھ وکٹ پر کوئی رک نہ سکا اور میچ ہاتھ سے نکل گیا۔ فارمیٹ بدلا، میدان بدلا، لیکن نتیجہ نہ بدلا۔ T20 سیریز جیتنے والی نیوزی لینڈ ٹیم نے پہلے ون ڈے میچ میں بھی پاکستان کو 73 رن سے شکست دے دی۔ 345 رنز ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی پوری ٹیم 45ویں اوورز میں 271 رنز بنا کر آل آؤٹ ہو گئی۔ بابر اعظم 78 رنز بنا کر ٹاپ اسکورر رہے۔ سلمان علی آغا نے 58 رنز بنائے۔ 3 کھلاڑیوں نے ایک ایک رن بنایا جبکہ 2 کھلاڑی 0 پر آؤٹ ہوئے۔ نیتن اسمتھ نے 4 وکٹیں حاصل کی۔ کیوی ٹیم کے مارک چیپمن کے 132 رنز اور محمد عباس نے ڈیبیو پر تیز ترین نصف سینچری بنائی۔ شکست کے بعد محمد رضوان کا کہنا تھا کہ اننگ کا آغاز اچھے انداز میں کیا، شروع میں پچ نے اچھا برتاؤ نہیں کیا، بیٹنگ میں مشکل ہو رہی تھی، 3 سے 4 اوورز میں مومنٹم بدل دیا۔ مسونگ میں لکپاس کے مقام پر بلوچستان نیشنل پارٹی کے دھرنے کے قریب خودکش دھماکہ، پولیس کے مطابق PNP دھرنے کے قریب رضاکاروں نے مشکوک شخص کو روکا، تلاشی لینے کے لیے دور لے گئے، اس دوران مشکوک شخص نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ اختر میگل کا دھماکے کے باوجود لکپاس پر دھرنا جاری رکھنے کا اعلان، کہا حملے ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتے، راستے کھلے ملے تو دھرنا کوئٹہ میں ہوگا۔ ترجمان بلوچستان حکومت کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ اتفاق ہوا تھا کہ آج حکومتی کمیٹی سردار اختر میگل سے ملاقات کرے گی، حکومتی کمیٹی راستے میں ہی تھی اور واقعہ پیش آیا۔ اختر میگل کی جماعت سے بات چیت جاری ہے، بہتر راستہ نکلے گا۔ وزارت خارجہ کے ذریعے افغان حکومت کے سامنے دہشت گردی کا مسئلہ مؤثر طریقے سے اٹھانے کا فیصلہ، وزیر داخلہ محسن نقوی نے کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی کو آگاہ کر دیا، کہا دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے وزیر اعظم، آرمی چیف اور تمام اسٹیک ہولڈرز ایک صفحے پر ہیں، صوبوں کی مشاورت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو دہشت گردی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کی جائے گی۔ فرنٹیئر کانسٹیبلری کی تنظیم 9 کے بعد اسے نیشنل ریزرو پولیس میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ نیشنل انٹیلیجنس فیوژن اینڈ تھریٹ اسسمنٹ سینٹرز کے قیام کی منظوری دی جا چکی، صوبوں میں کام جاری ہے۔ ایک میٹنگ ہوتی ہے جو ہمیں پتہ نہیں، سندھ حکومت کو پتہ نہیں تھا، صدر زرداری آپ سب کو پتہ ہے کہ ان کا کافی کین انٹرسٹ ہے اریگیشن کے اوپر، آپ لوگ اس سے بھی جب ملتے ہوں گے بات کرتے ہیں، اس کے اندر انہوں نے کہا گیا کہ جی ہم پانی بچائیں گے اور پھر ہم یہ بات کریں گے۔ تو صدر زرداری نے انہیں اس حوالے سے کہا اگر اچھی چیز ہے تو صوبوں کو فنڈنگ دینی چاہیے، وفاق کو بھی فنڈنگ دینی چاہیے، بڑی کلیئر بات ہے، منٹس غلط ریکارڈ ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے اس کو ایک بہانہ بنایا کہ جی صدر کے پاس میٹنگ ہو گئی اور انہوں نے اپروو کر دیا، اس کی لیگل کانسٹیٹیوشنل ویلیو کچھ بھی نہیں ہے۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان جیسے میں نے کہا ڈز ناٹ ہیو اتھارٹی ٹو اپروو اینی پروجیکٹ۔ صدر زرداری نے چولستان کینال کی منظوری نہیں دی، صدر کے پاس کسی منصوبے کی منظوری کا کوئی آئینی اختیار نہیں، صدر سے میٹنگ کا بہانہ بنا کر کہا گیا کہ منصوبے کی منظوری ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی کراچی میں سینئر صحافیوں سے گفتگو، کہا صدر مملکت سے میٹنگ میں اضافی زمین آباد کرنے کا کہا گیا۔ صدر زرداری نے کہا کہ اگر صوبوں کو اعتراض نہیں تو کریں، یہ معاملہ ہمارے کنٹرول میں ہے، ہم کینالز نہیں بنانے دیں گے، پیپلز پارٹی کے پاس طاقت ہے، پیپلز پارٹی کی حمایت کے بغیر وفاقی حکومت نہیں چل سکتی، کینالز کا معاملہ سندھ کے لیے جینے مرنے کا مسئلہ ہے۔ پروپیگنڈا کیا گیا کہ سندھ حکومت اس میں ملوث ہے، ہم نے سندھ اسمبلی سے بھی ان کینالز کے خلاف قرارداد منظور کی، یہ معاملہ ایکنک میں موجود ہے، وہاں بھی اس کی سخت مخالفت کریں گے۔
पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने कहा है कि सूबे में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन रहा। मुल्क इस वक्त बदतरीन इंतजामी और कानूनी बहरान का शिकार है। जंग और द न्यूज़ में शाये होने वाली अरशद अजीज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इल्जाम लगाया कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। कराची में कुरंगी क्रॉसिंग के करीब गहरी खुदाई के दौरान आग कैसे लगी? गैस का जखीरा है तो कौन सी गैस का है? आग बुझाने के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाए? अब तक तय न हो सका। रात से लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। शदीद तपिश के बायस फायर ब्रिगेड को मुश्किलात। चीफ फायर ऑफिसर का कहना है कि पानी का छिड़काव, मिट्टी का और रेत का इस्तेमाल रोक दिया गया है। पानी और रेत समेत मुख्तलिफ नमूने टेस्ट के लिए भेजे हैं, जिससे मालूम होगा कि ये कौन सी गैस है। यहाँ गैस लाइन है या गैस पॉकेट, हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। कंस्ट्रक्शन कंपनी का कहना है कि 1200 फीट तक खुदाई बोरिंग के पानी के लिए की गई थी। मिट्टी की टेस्टिंग में गैस मौजूदगी की रिपोर्ट नहीं थी। कमिश्नर कराची का कहना है कि बोरिंग करवाने से मुताल्लिक मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं। जिस इदारे ने इतनी गहरी बोरिंग की इजाजत दी उसकी भी तहकीकात करेंगे। म्यांमार और थाईलैंड में 7.7 शिद्दत के जल्जिले ने तबाही मचा दी। हलाकतों की तादाद 1000 से जायद, तकरीबन 2500 अफराद जख्मी, दर्जनों लापता। मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। जल्जिले से सबसे ज्यादा नुकसान म्यांमार के शहर मंडाले में हुआ, जहां 694 अफराद हलाक और 1700 जख्मी हुए। बैंकॉक के गवर्नर का कहना है कि जल्जिले से 10 अमवात हुई। 30 मंजिला इमारत गिरने से दर्जनों मजदूर मलबे तले दब गए। 100 से ज्यादा अफराद अब तक लापता। शहर में 2000 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा। मुतासर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अमवात और तबाही पर चीनी सदर शी जिनपिंग का इज़हार अफसोस। चीन ने 82 अफराद पर मुश्तमिल इमदादी कारकुनों की टीम म्यांमार भेज दी। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का थाईलैंड और म्यांमार में जल्जले में कीमती जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत ने कहा, दुख की इस घड़ी में थाईलैंड और म्यांमार के अवाम और जल्जला मुतासरीन के साथ हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जल्जला मुतासरीन से इजहार यकजहती। कहा, पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में म्यांमार और थाईलैंड के अवाम के साथ खड़ा है। म्यांमार और थाईलैंड में जल्जले के बाद पाकिस्तानी शहरियों की मदद के लिए सफारत खाने अलर्ट। वजारत खारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फाल। पाकिस्तानी शहरियों की हंगामी मदद के लिए वजारत खारजा ने नंबर जारी कर दिए। भारत में अक़लियतों पर रियासती जबर के शवाहिद मौजूद हैं। अक़लियतों के खिलाफ वाक़यात हुकूमती अनासिर की मिली भगत से होते हैं। भारत अक़लियतों के हुकूक का चैंपियन बनने की पोजीशन में नहीं। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के पाकिस्तान में अक़लियतों के साथ नावसलूक के बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान में रियासती इदारे अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हैं। उसके बरअक्स भारत में अक़लियतों के खिलाफ नफरत और तशद्दुद को फ़रोग़ दिया जा रहा है। भारत में मसाजिद और दरगाहों पर हमले मामूल बन चुके। भारतीय हुकूमत दूसरों पर तनकीद के बजाय मुसलमानों समेत अपनी तमाम अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अमीर कतर से टेलीफोनिक राबता। ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। वजीर आजम का दोनों ममालिक के करीबी और देरीना बरादराना ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान। सियासी, इख्तिसादी और सकाफती समेत तमाम शोबों में दोतरफा ताउन को मजीद फरोग देने के आज़म का आदा। वजीर आजम ने गजा में अमन के क़याम के लिए अमीर कतर के सरगर्म किरदार और खुसूसी कोशिशों की तारीफ की। ईद की तैयारियों का आखिरी मरहला। मैचिंग ज्वेलरी, चूड़ियों और जूतों की दुकानों पर रश बढ़ गया। झुमके, नित नई डिजाइन वाली चूड़ियां और फेरी हील्स खवातीन की पसंद बन गई। बच्चे भी चश्मे और घड़ियों और दीगर अशिया की खरीदारी में मसरूफ। कराची और लाहौर के बाजारों में रात में दिन का समा। मुल्तान, रहीम यार खान के बाजारों में भी गहमा गहमी। चमन में नौजवानों की जरदारी टोपी की खरीदारी। ईद पर ब्यूटी पार्लर्स पर भी रश। कहीं खवातीन मेहंदी लगवाने तो कहीं फेशियल करवाने में मसरूफ। हेयर डाई करवाने का काम भी जारी। तैयारी में मर्द भी खवातीन से पीछे नहीं, सैलून पहुंच गए। कहते हैं ईद पर अच्छा नजर आने के लिए हेयर कट और फेशियल जरूरी है।
ईद स्पेशल ट्रेन पेशावर के लिए रवाना। कल शाम पेशावर पहुंचेगी। 9 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन में 300 मुसाफिर सवार हैं। रेलवे हुक्काम के मुताबिक ईद स्पेशल ट्रेन की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। कोयटा से कराची के लिए बोलान मेल को 31 मार्च से रोजाना चलाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ईद पर ज्यादा किराया वसूल पर क्रैक डाउन का हुक्म। मुकर्ररा किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए इक़दामात की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, गरीब मुसाफिरों के इस्तेहसाल की इजाजत नहीं दी जाएगी। जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर का कहना है कि मुसाफिर जायद किराया वसूल करने वालों की बर वक्त निशानदही करें। वज़ीर इत्तलात सिंह शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि जॉब पोर्टल कामयाब तजुर्बा रहा। 1,24,000 अफराद ने इस पोर्टल को इस्तेमाल किया। पोर्टल पर 2,903 फाल नौकरियां नजर आ रही हैं। सूबे के लाखों लोग पोर्टल से मुस्तफीद होंगे। इसका दायरा कार वसी कर रहे हैं। चंद रोज पहले बिलावल भुट्टो ने आई वर्क फॉर सिंध के नाम से पोर्टल का इफ्तिताह किया था। फैसलाबाद में इज्तिमाई ज्यादती केस में तीसरे मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। गिरफ्तार 2 मुलजिमान को शनाख्त परेड के लिए आज जेल मुंतकिल किया जाएगा। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए फी लीटर कमी कर दी। इत्तलाक रात 12 बजे से हो गया। पेट्रोल की कीमत 254 रुपए 63 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल और हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। दौसा में पंजाब खैबर पख्तूनख्वा सरहदी इलाके में पुलिस चेक पोस्ट पर खारजी दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक, बड़ी तादाद में जख्मी। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक चौकी लखानी पर 20 से 25 खारजी दहशतगर्दों ने हमला किया। जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द अपने जूते दीगर सामान छोड़कर भाग निकले। पंजाब पुलिस अलर्ट है, खारजी दहशतगर्दों को पंजाब में दाखिल नहीं होने देंगे। कराची के इलाके लियाकताबाद में कार पुल पर खड़े खराब ट्रक से जा टकराई। पुलिस के मुताबिक हादसे में कार ड्राइवर जाँ बहक हो गया। गेसरी में भी कार की टक्कर से राहगीर खातून जाँ बहक जबकि 2 शदीद जख्मी हो गयी। हादसे के बाद ड्राइवर कार समेत फरार हो गया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी नौडेरो पहुंच गए। बिलावल भुट्टो जरदारी का ताजिर संतोष कुमार के कत्ल पर अहले खाना से इजहार अफसोस। बिलावल भुट्टो की गरीबाबाद महल्ले आमद। शहीद ASI रमजान भुट्टो के लवाहिकीन से ताजियत की। सिंध से ताल्लुक रखने वाले सहाफी अब्दुल खालिक चौहान पर पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। खैरपुर पुलिस के मुताबिक सरकार की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में पैका एक्ट की दफात शामिल। दावा किया गया है कि सहाफी ने पुलिस के खिलाफ सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज गैर कानूनी मवाद शेयर किया। वजीर आजम के मावन खुसूसी तारिक फातमी का कहना है कि ट्रंप इंतजामिया से पहला आला सतह राबता था। अमरीकी महकमा खारजा और कैपिटल हिल दोनों जगहों से मुस्बत रद्द अमल मिला। अपने हम मनसबों को वजीर आजम की इक्तिसादी तरक्की, तिजारत और सरमायाकारी को फरोग पर तवज्जो के बारे में आगाह किया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान मिशन में प्रेस ब्रीफिंग में तारिक फातमी ने बताया, पाक चीन ताल्लुकात हुकूमतों की तब्दीली और आलमी सतह पर चैलेंजेस के बावजूद हमेशा करीब रही है। चीन के साथ करीबी दोस्ती रखते हुए पाकिस्तान अमरीका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात कायम रख सकता है। दहशतगर्दी के पीछे कलअदम TTP और अफगानिस्तान में मौजूद दीगर दहशतगर्द गिरोह हैं। ये तंजीमें इन जदीद हथियारों से लैस हैं जो अमरीकी इनखला के बाद अफगानिस्तान रह गए थे। दिल का रिश्ता ऐप ने खास अपने सार्फिन के लिए VIP मैच मेकिंग सर्विस मुतारिफ करा दी है, जिससे बेहतरीन प्रीमियम रिश्ते हासिल किए जा सकेंगे। इस सर्विस के जरिए मैच मेकर्स 172 ममालिक से लाखों प्रीमियम रिश्ते हासिल कर सकते हैं। तो 2 एक्टर्स बचे, एक आप और एक फलां। तो फलां कौन होने चाहिए? आप एक्टिंग करते हैं? अगला सवाल क्या है भाई? नहीं, मैं तो आपके साथ करना चाहती हूँ। नहीं, मैं तो खुश होके आगे बात ही नहीं कर रहा इस बार। ये चीज तय हो चुकी। मैं चाहती हूँ कि ताबिश हाशमी का डेब्यू मेरे साथ हो। क्या आप चाहते हैं सर?
اداکارہ آسیکا ڈینیل بنی تابش ہاشمی کی مہمان. آسیکا کو کس اداکار کے ساتھ کام کرنے کی خواہش ہے اور اداکاری سے پہلے کیا کرتی تھی؟ شرکا کے سوالوں کے دلچسپ جوابات دیکھیے پروگرام ہنسنا مناہے میں آج رات 11 بجے صرف جیو نیوز پر.